صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على قوم الظالمین. آمین رب العالمین. بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے اس مالک عز و جل کے لیے جو ہمارا بہترین خالق و مالک ہے. ہمارا وہ پروردگار عالم کہ جس نے اپنی حمد و ثنائے ستائش کرنے کو اپنی نعمتوں کی قیمت، ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ اور سب سے بڑھ کر ہم شیان حیدر کرار کو جنت میں جانے کا وسیلہ قرار دیا ہے. تمام در تعریفیں زیبا ہیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کا نام لیتے ہوئے ہم ہر مجالس کا آغاز کرتے ہیں اور ہر ذکر کا آغاز کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کا شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں. کہ میرے مالک، جہاں تو نے ہمیں بہترین سے بہترین، افضل سے افضل، قیمتی سے قیمتی، بلند سے بلند نعمتیں عطا کر دی، تیری سب سے قیمتی نعمت یہ ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں ولایت علی محبت اہل بیت کائنات خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے پانی کو پیدا کر دیا، پھر پانی کو اکٹھا کرا، پھر نالوں کو دریاؤں میں گرایا، دریاؤں کو سمندروں میں گرایا، سمندروں سے لہریں بنائی، لہروں سے موجیں بنائی، پھر انہی موجوں سے ہوائیں بنائی، پھر انہی لہروں میں خدا نے بڑھتی لہروں کو شامل کر دیا. کہا تھا علی نے آج سے 1400 برس پہلے کہا کہ پانی کے اندر بجلیات موجود ہیں، بڑھتیات موجود ہیں. ابھی لوگوں کی سائنس کا قصور ہے کہ آج کی لیٹسٹ سائنٹیفک تھیوریز نے اس بات کو ریسرچ کر کے تسلیم کر لیا کہ بے شک جو 1400 سال پہلے ابو طالب کا بیٹا کہہ کے گیا کوئی بات سچ ہے کہ پانی دور سے آ رہا ہے. آپ نے کس طرح ریسرچ کری؟ کاش ہم پہلے مان لیتے، ہمیں زندگی گوارا نہ کرنی پڑتی. ہم نے کیا ریسرچ کری؟ ہم نے دیکھا کہ آخرکار یہ نور پانی سے آ کس طرح رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو بلب سے روشنی ہے وہ ایک روشنی سوئچ سے آ رہی ہے، سوئچ میں جو بجلی ہے وہ ایک لائن سے آ رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ لائن کے اندر جو بجلی ہے وہ ایک میٹر سے آ رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا آخرکار یہ نور پانی سے آ کس طرح رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ میٹر کے اندر جو بجلی ہے وہ ایک پول سے آ رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پول کے اندر جو بجلی ہے وہ ایک ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے. پھر ہم نے تحقیق کری کہ آخر ٹرانسفارمر میں جو بجلی ہے وہ ایک پاور ہاؤس سے آ رہی ہے. اور میں اپنے مرکز جملے کے بالکل قریب کہ پاور ہاؤس میں جو نور ہے وہ نور پانی سے آ رہا ہے. کہنے کا مقصد
मकसद ये है कि हमारा आखिरी इमाम भी जमीन पर नहीं बल्कि मरकज नूर पर बैठा हुआ है। वजह है खुदा कहता है कि जब मैंने आदम को पैदा किया तो आदम से पहले जमीन बन चुकी थी, आसमान बन चुका था, चरिंद बन चुके थे, परिंद बन चुके थे, जन्नात बन चुके थे, जन्नत सज चुकी थी, हर चीज बन चुकी थी, वो मसूद हो चुका था, वो माबूद हो चुका था। फिर खुदा कहता है मैंने आदम को बनाया। अब जो लोग कहते हैं कि आदम पहले अली बाद में, तो अली की फजीलत आदम से ज्यादा कैसे? इसलिए जब कुदरत की निगाहों ने ये मौका दिखाया कि जब जनाबे आदम से पूछा गया कि आदम क्या आप अली की तरह बताएंगे ये जमीन बनी कैसे, आदम आप बताएंगे ये आसमान बना कैसे, आदम आप समझाएंगे कि कहकशां में कितने करोड़ सैयारे हैं, आदम आप बताएंगे कला क्या है, आदम आप समझाएंगे अर्श अव्वल क्या है, आदम आप अली की तरह बताएंगे कि निजाम शमसी को कंट्रोल कौन कर रहा है, आदम आप बताएंगे कि खुदा ने जमीन को बना के इस पे पहाड़ों की मेघें लगाई कैसे, आदम आप बताएंगे कि मिकाइल बना कैसे, जिन बने कैसे, इस्राइल बना कैसे, इस्राफिल बना कैसे, हर कायनात आदम से वजूद में आई कैसे, आदम आप बताएंगे। जनाब आदम मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहा मैं नहीं बता सकता। क्या अगर आप नहीं तो फिर कौन? आवाज आई आदम हो हमसे पूछो, हम वो है फरमाते हैं कि कायनात न थी मैं और अली, जमीन बन रही थी मैं और अली देख रहे थे, कायनात आदम से वजूद में आ रही थी मैं और अली देख रहे थे। फरमाते हैं कि मैं और अली जानते हैं कायनात बनी आदम से पहले, कायनात बनी आदम से पहले, फिर आदम बाद में, मक्खी पहले आदम बाद में, आसमान पहले आदम बाद में, जमीन पहले आदम बाद में। आदम नहीं बता सकता, लेकिन खुदा की कसम अबू तालिब का बेटा वो है जिसके सामने कायनात का जर्रा जर्रा तख्लीक और वजूद में आ गया। अली बता सकता है कि कहकशां में कितने करोड़ सैयारे हैं, अली समझा सकता है कि चांद की मानियत क्या है, अली दिखा सकता है कि सूरज की अज्जाई तरतीबी क्या है, अली बता सकता है कि जमीन से लेकर आसमान तक के फिजा में फासला कितना है। खुदा की कसम अगर अली ना बताता तो अगर आज किसी सवाली के सवाल करने पर ये ना कहता कि एक घोड़ा जो 500 मील और 3 घंटे की रफ्तार से चले और 500 बरस तक चलता रहे तो वो आसमान तक पहुंच जाएगा। और आज की लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरीज ने भी रिसर्च करके बता दिया कि बेशक अली का इल्म सच्चा है। कहने का मकसद ये है कि मशीयत क्यों जाती है कि मैं हर चीज बनाने से पहले अबू तालिब के बेटे को बनाऊं। क्या कहने खुदा ये चाहता कि जब मैं अली को जमीन पर भेजूं तो ये कायनात की हैयत और अजाई तरतीबी का इल्म रखता हूँ। तो वैसे भी ये सारी की सारी कायनात जब सिमटे तो ये हुस्न कायनात बनती है। जो सुन लिया, ये कायनात जिस सलीके जिस करीने से बनाई हुई है, खुदा की कसम कि उसकी कुदरत कामला पर दलील है। बनाने वाला जरूर ये चाहता है कि जब मैं कोई शाकार तकलीफ करूं तो उसका गवाही देने वाला मौला अली बाबा से बुलंद सलावत। याद रखना ये कायनात का सर्रा मैंने बनाया। आज तारीख शायद है कि तारीख आदमियत में कोई भी नहीं हैदर करार से पहले बलागा में पहला खुतबा दिया कि ये जमीन बनी कैसे, आसमान बने कैसे, सितारे बने कैसे, ये तमाम की तमाम चीजें बनी कैसे। कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे अली की बात पर रिसर्च होती जा रही है वो रिसर्च इल्म की सूरत में बनती जा रही है। तो जाने मोहतरम पहले के लोगों के सामने अली का इकदाम एक मौजज़ा था और आज के लोगों के सामने इल्म की सूरत में बनता जा रहा है। क्या कहने मौला के फजाइल का, इसमें कुरान गवाही देता हो कि बेशक अबू तालिब का बेटा सच्चा, इसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने
आसमान 6 दिन में बना दिया। फिर अली ने बताया कि जब वो खुदा किसी शय पर कुन कर दे तो वो फयाकुन हो जाती है। उसके कुन कहने और शय के कुन, उसके कुन कहने और शय के वजूद में आने में जरा सा भी फासला नहीं। आप कुन और फयाकुन को जहन में रखिएगा। अहले सुन्नत की किताबों के रुजू से बढ़ूं तो अहले सुन्नत की किताबों में लिखा कि हमने देखा कि आखिर कुन और फयाकुन का ताल्लुक अली से इस चीज का ताल्लुक क्या है। तो हमने देखा एक दरख्त के नीचे अबू तालिब का बेटा और अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं। इधर अल्लाह के रसूल ने अपना चेहरा मुबारक अली के जानू पे रखा और महफिल इस तरह हुए कि इधर अली की नमाज का वक्त कज़ा हो रहा था। मुहर्रिकीन ने लिखा कि अली ने अपनी नमाज का वक्त कज़ा होने दिया, लेकिन एहतराम रिसालत नमाज आती है तो जाए, नमाज कज़ा हो गई तो अदा हो जाएगी। खुदा की कसम एहतराम रिसालत कज़ा हो गया तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। खुदा की आंख खुली, कहा या अली हद नहीं हो गई, आपने हमारी मोहब्बत में अपनी तौहीद से नमाज कज़ा कर दी। हम मौला कायनात का जुमला कहाँ जाके मैं अली के फजाइल बयान करूँ। कहा नहीं नबी अल्लाह, मजा तो जब है कि कज़ा भी ना हो और एहतराम भी रहे। अपनी कुदरत का मुजाहिरा करो, क्योंकि तुम मेरे वली अमर भी हो, मेरे लगते जिगर भी हो, तुम मौलुल मोमिनीन भी हो, भी हो, चाहे तुम पसीमो जन्नत व नार भी हो, चाहे तुम बरादर जाफर तैयार भी हो, चाहे तुम कासिम भी हो, चलिए अपने कुदरत का मुजाहिरा करो। अब तारीफ कहते हैं लफ्ज़ कुन और फयाकुन। क्या कहने फरमाते हैं या अली, ये कायनात तेरे सामने बनी, तू जानता है सूरज को निकालना कैसे और छुपाना कैसे। अब अली ने अपने यदुल्लाह वाले हाथों को उठाया, खैबर का दर उखाड़ा, मौला कायनात ने इशारा करा। अब उस सूरज जिस निशित से गुरूब हुआ, उसी मौला कायनात के इशारे से देखा कि वाकईन जब खुदा किसी शय पर कुन कर दे तो वो फयाकुन हो जाती है। वाली आंखों ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि वाकईन जब वो किसी शय पर कुन कहे तो वो फयाकुन हो जाती है। अब लोग अली को नाउजुबिल्लाह खुदा मान लेते। अगर अली सूरज को निकालता और दोबारा जमीन पर बैठ जाता, इसलिए तो हैदर कर्रार को हलाल मुश्किलात कहा जाता है। अगर अली ने सूरज का मौजज़ा दिखाया और खुदा के जेर सजदा करके बता दिया कि वो रब किरदार है और मैं उसका हैदर है। कर आलम अरवाह में इम्कान न होते, कर आलम अरवाह में इम्कान न होते, फिर आलम इम्कान में हुबदार न होते और होती ना विलायत जो इब्राहिम के दिल में, होती ना विलायत जो इब्राहिम के दिल में। इस पार ही रहते कभी उस पार ना होते और सजदे में सर रख के कभी पूछ खुदा से क्या होता अगर है ना होते क्या होता अगर है करार ना होते। अज़ान मोहतरम, ये फजीलत है इमाम नबी, ये विलायत है। ये जो लोग इमाम की जिंदगी में तो तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन बाद इमाम इसका बदला इमाम के घर वालों से निकाला जा रहा है। किस कदर कि जिस बेटी से अली इतनी मोहब्बत करते हैं वो आज इतनी मजबूर हो गई।
कि 1 बरस के बाद अपने भाई का जन्म मनाया। परवरदिगार कोई बहन ऐसे गरीब ना हो जैसे ज़ैनब में आलिया और का सदा का अल्लाह ताला ने मसलन अम्मा सजाद कैसी बेहाल बच्चे जिंदान में रह गए 14 की लाशें करबला में रह गए दुश्मनों के कब्जे में सईद सज्जाद कैसी रिहाई तो अम्मा इस सालिम हमारा लूटा हुआ सामान वापस करना चाह रहे हैं सईद सज्जाद इस सामान का हम क्या करेंगे इन जालिमों से कह दो बस हमारे शौदाओं की सर हमें वापस और पता लो कैसी गुर्बत है कि हम लाशें शौदा के सरों से जोड़ के करबला में रख खाने में तमाम शौदा के सर किस तरह की लाशें किस तरह का सर पहला सर कासिम का आया उम्मे परवाह की बड़ी तमाम बीवियों ने कासिम का पुरसा दिया अकबर वो बोले अकबर का सर आया सुन सको कब एक मर्तबा अली अकबर का सर आया ना बोले ना जिसकी आंखों की बिनाई उसके जवान बेटे की लाश ले गई एक मर्तबा लैला खामोश सियार फिसलने के लैला खामोश मेरी आंखों में वो मंजर आया अकबर का लाशा अली अकबर का सर मैं एक शाम की खातून अली अकबर का सर नहीं उसने गवारा नहीं मैंने कहा क्यों देखती हो मेरे अली अकबर को कहा मैं इसलिए देखती हूँ कि परवरदिगार इसे जवान के मरने से पहले इसकी मां रोज मर गई और ज़ैनब में कैसी गुर्बत है जवान बेटा मर गया मां फिर तमाम बीवियों ने लैला को सच दो और मोहम्मद का सर आया तमाम बीवियों ज़ैनब आलिया के पास बीवियों मुझे गुस्सा ना देना अरे मेरे बच्चे तो रंज दूल्हा बन गए मेरे अली अकबर बीमार दिए भाई अदा लो एक मर्तबा अब्बास का सर आया अब जैसे ही आएगा जब सच रवायत है कि मैंने अपनी आंखों से देखा अब्बास का सर आया अब्बास की आंखें जला से कैद खाने के आने जाने को ले जैसे सर अब्बास अरे ज़ैनब की आगोश में आए अब्बास ने अपनी आंखों को बंद कर लिया ज़ैनब आलिया ने कहा कि अब्बास तू बहन की गुर्बत दे नसर बेचारा अरे मानियों के नारे शराबियों का मजमा आया तो लड़ने में तुम्हारी एक मर्तबा जब मोहम्मद का काफिला अपने घर को जाने लगा जनाब सईद सज्जाद से रवायत है कि मैंने देखा जनाब मेरा बाप एक छोटी सी लबन ले सकीना घबराना नहीं सलाम बीबी आपकी असमत पर एक बेटा करबला के मैदान में छोड़ दिया एक बेटी शाम शाम की औरतों वादा करो मेरी सकीना की कब्र पे एक शमा जरूर जला दो मेरी बच्चियां धेरे से घबरा रही है आखिरी जुमलों को सुनना एक मर्तबा जब ज़ैनब माँ नाना के मज़ार पर आए कहा नाना हुसैन की सुनानी ना 70 कदम का फासला तब शिव ने हुसैन की सुल्फों में आ जाया इधर कब्र ज़ैनब में हुसैन का कुर्ता सैयदा की कब्र में रखा कब्र में जलाया और कहा अम्मा बर्दाश्त ना तुमने कुर्ता देखा मैंने कटता हुआ गला जहाँ कभी भी अपने बच्चों का पुर्जा ना ली एक माँ का हलीमा बीवी को मातम करके पुर्जा देना घर पे आई ना नन्ही नन्ही सारी माथे पे काटे हुए सीने से ना और अब बीवी का कलेजा फटने लगा और मोहम्मद माँ को अपने और माँ का दिल नहीं करता